देखो जी, सबसे पहले मैं वापस इन सबके बीच में एक VTP I want to configure. So first of all, what I'll do is let me create trunks between everywhere. Interface range F0, 1 and 2. Thank you, sir. Switchboard mode trunk. Do show history. Right? The same thing I will do on the other switches. Trunk. Trunk. Interface F01. Switchboard mode trunk. And here also let me do the same thing. Done it. On every switch, all the switches are connected with each other through a trunk, right? First of all, now let me create here this one. I want to make it as a server and client, client, and client, and this one I'll make a transparent, right? But before that, let's create a domain name, VTP domain, VTP domain network bulls, right? That's a VTP domain, and then VTP password. Okay, if you require that, you put that, but if you don't require that, don't put that, right? And why do we require that? Because if I'm connecting one more switch here, then that particular switch might be a ROG switch, right? Or if any ROG switch, or that means any attacker switch, if it's trying to come inside the VTP domain, I don't want him. I don't want my VTP information to be shared with him, right? So in that case, I'll do is VTP password. I will put, right, one thing. Okay. Now here, let's go and see show VTP status. Domain name is network bulls, so let me make it a client. VTP mode client. Do show VTP status. It is still not here. It will take some time. Yes, it is there, right? So let's just make it a client mode. Here also it has already reached show VTP status. You see? So that also a client, and here show VTP status. That is in server mode for sure. So let me make it a transparent. VTP mode transparent. Done. Now, what do I want? That all the switches must be running, let's say VTP version 2, right? So I will just make, I can make the changes only on server. Do show VTP status. You see, today it was not showing that after changing the VTP version, it was not incrementing the revision number, right? But here today, if I change the VTP version, it is incrementing the VTP version or not? I told you that in three conditions, it will change. It will increase the CR number. And what are the conditions? Any change in VLAN database, okay. Domain name and version. CR number कैसे change होगा? CR number से क्या बात कर रहा है? Version if you change, then CR number will be incremented by 1, right? Now, अब क्या है? Let me create here some VLANs. VLAN 1 to 10. पैकेट ट्रेस में होता नहीं है. VLAN 2, 3,
4, 5, 6, bus. Do show VTP status. You see revision number has been increased by 5. By yes, earlier it was 5 and now it's 6, right? So it's been increased by 5 or not? Yes, sir. And also do show VLAN brief. The number of VLANs 2, 3, 4, 5 and 6 are there, right? Now, if you just circulate the information, then all the switches will be having the same thing. See, show VLAN brief. It's coming or not? Yes, sir. So friends, what I want to say is, here on this particular switch, all the switches it's running VTP version 2. Show VTP status. VTP version 2 mode has been enabled now. But here on the transparent, do show VTP status. Which version is disabled, so version doesn't matter, right? And also one more thing, even if you, huh? Yes, CR is always 0. 0 means, say, on the transparent mode, CR number is always 0 because it means that I am not even participating in any VTP domain, Yes, sir. right? Although I am into the VTP domain network bulls, but still I am not participating. That's why my revision number is 0. And why I am not participating? Because I am in transparent mode. इसमें हाँ यहाँ पे चेंज करेंगे तो रीड तो करेगा ना? क्या अभी करता हूँ ये लो VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 VLAN 13 right now do show VTP status revision number is still 0 friends it actually doesn't matter see do show VLAN brief VLANs are there but see if it is showing you that the revision number is 0 then it actually means that I am not a part of VTP domain I am not an active member of VTP domain I'm just a part of VTP domain but it's just like I am a part, but I'm a passive part, right? I will not even contribute anything. I'm not even a part of you, but I'm just a part. Getting me or not? Yes, sir. देखो इस चीज को ऐसे समझो a glass is a transparent thing right the light rays will come and the light rays will pass but it will never ever store the light rays inside yes or no Yes, sir. but still the light rays which are coming from the up right it will definitely make a impression make a shadow on the earth or not Yes. right so friends you can take it that way कि this is transparent because whatever the VTP information I'm receiving mobile बाद में use कर लियो whatever the VTP information I'm receiving I will just let it pass right I will not keep that information with me but on the secondary basis secondary thing is that I can create my own shadow. That means I can create my own VLAN database. It is my own VLAN database that I have. I don't have your VLAN database. See? VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 13. You see that these VLANs have been created? Yes or no? Yes, sir. Now see friends, what I want to say is कि जो भी VLAN we create on the switch, right? On the transparent mode. Whatever the VLANs will create, those VLANs will be saved in the running configuration. Okay, Yes, sir. okay, and in the VTP, that file will be contained in VTP for sure. Got it? Yes, sir. Got it or not? Yes, sir. My own VLAN are in my running configuration. ये देख लो, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? VLAN 13. VLAN 13 मैंने इसमें बनाया था ना? VLAN 13 यहीं पर तो है. VLAN 2, 3, 4, 13 मैंने बनाया था इसको सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा Yes, sir. बट एक्चुअली जिसके पास VTP फाइल होती है ना VTP फाइल इसके पास भी वही है जो सर्वर के पास है ठीक है जो सर्वर के पास VTP है वही VTP इसके पास है समझ में आ रही है मेरी बात और वो VTP फाइल कहाँ पर होती है फ्लैश में राइट द VTP ऑफ सर्वर आई हैव बट स्टिल I have my own VLAN which is in my running configuration and I'm not a part there. समझे? Or on a transparent switch, one more very good thing you can do is you can create any extended VLAN. Packet tracer में you cannot. Packet tracer में you cannot. But friends, on the real device,
If you put the switch in the transparent mode, you can create the extended range of VLAN as well. Am I clear or not clear? All of us? Good. Now, सर इसको रीलोड मारेंगे VLAN चला जाएगा देख सर्वर transparent को okay, let's reload the device. Do reload. Let's see what will happen. Let us see. नंबर 1 एक मिनट एक क्वेश्चन चल रहा है रुक जा हाँ बोल 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 अच्छा VTP वर्जन 3 के वाला तूने एक लाइन पढ़ी है उसी लाइन के पीछे पड़ जाएगा हाँ तो उसमें लिखा हुआ है लेकिन बेटा VTP वर्जन 3 की बहुत सारी फीचर्स होती हैं VTP वर्जन 3 में तो चल जाता है एक्सटेंडेड VLAN लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में भी चल जाता है नाउ ये लो शो VLAN brief 2 3 4 13 शो रन VLAN 2 3 4 13 बता रहा हूँ ये ले because friends number 1 whenever you want to erase the VLAN file is saved in the flash memory हाँ या ना तो flash memory को if you want to erase VLAN.dat if you want to remove every VLAN reload will not help but you have to write is delete flash VLAN.dat enter कल करके भी दिखाया था ये उसके पास तो सर्वर का VLAN.dat हाँ अब देख बेटा सर्वर का ही है अब ये देख एक और चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ जस्ट थिंक अबाउट इट इस स्विच को राइट इस स्विच को इफ आई रीलोड तो क्या ये वापस इसी VDP डोमेन में आएगा या नहीं आएगा सोचो समझो फिर बताओ जितना टाइम लेना है लो बट थिंक अबाउट इट ट्वाइस और थ्राइस और 30 टाइम्स और 3000 टाइम्स एंड देन टेल मी द आंसर जस्ट थिंक अबाउट इट क्यों आएगा देन टेल मी द रीजन हाँ बिकॉज तो उससे क्या होगा पूरी बात बोला करो हाँ देखो when the device will turn on the device will be back into the server mode or not server mode of null domain हाँ या ना and now it is in the null domain of server and in the null domain if I hear any advertisement from wherever I will accept that advertisement or not but still practically speaking it should be a सर्वर बट नॉट अ क्लाइंट इसको वो तो नहीं पता लगेगा कि वेदर आई एम सर्वर और क्लाइंट सी शो VTP स्टेटस यू सी 6 एंड यहां पर ये दिखा रहा है कि ये क्लाइंट है बट एक्चुअली रियल डिवाइस पे इट विल नॉट शो दैट इट्स अ क्लाइंट समझ में आई बात पक्का गुड सर इसको भी सर्वर बन जाना चाहिए था ट्रांसपेरेंट हाँ तो वो तो बनेगा मैं कह रहा हूँ रियल डिवाइस से बनेगा यहाँ पर नहीं बन रहा पैकेट ट्रेसर पे आदमी सुना कर बात को मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं बन रहा रियल डिवाइस पे ये वापस सर्वर ही बनेगा हाँ वो तो होगी रहेगी ट्रांसपेरेंट रहेगी अबे ट्रांसपेरेंट की बात नहीं है भाई चाहे वो कोई मर्जी डिवाइस हो ये देख ये ले देख पता है मैं ये चीज में बोल बोल के थक गया कि पूछा मत करो क्वेश्चन आ रहा है जाके कर दो और फिर बात करो हाँ भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये ले VLAN 2 VLAN डेटाबेस ऐसे बना दूंगा ये भी तो तरीका है VLAN बनाने का बताया था मैंने VLAN 2 3 4 एग्जिट हो गया अप्लाई हो गया ये ले कुछ राइट करा मैंने ले अबे तू लिखेगा VLAN 2 एंटर तो डेटाबेस तो क्रिएट हो रहा है और क्या हो रहा है ये ले एनेबल शो VLAN फ्री है अभी भी क्योंकि ये VLAN.dat में MS कोड आना चाहता हूं तो मैं करूंगा इरेज फ्लैश नहीं डिलीट फ्लैश नेम होगा VLAN.dat और उसके बाद इसे कर दो अब रीलोड उससे पहले ये और कर दो ये लो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव करी है तो ठीक है एंड देन मेक इट अ रीलोड हो गया
अब इट वोंट बी हैविंग एनीथिंग। समझ में आई है मेरी बात? Yes, sir. नाउ वन थिंग, वन क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट इट हैज फ्यू VLANs बाय डिफॉल्ट, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर अब करूंगा शो फ्लैश, तो क्या ये VLAN डॉट डैट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है जिसके बारे में आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, राइट? द क्वेश्चन है, और किसी से पूछना नहीं है, अपना दिमाग लगाना है, अपनी किताब पढ़नी है, किताब में नहीं है तो इंटरनेट पे पढ़ो, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर, राइट? बट व्हाट आई डू केयर इज इफ यू रीड इट, आप लोगों को बेनिफिट होगा, मुझे नहीं, ठीक है? मुझे इसमें बेनिफिट है, आपको बेनिफिट है, तो एक्चुअली मेरा ही बेनिफिट है, मैं ऐसा मानता हूँ। चलो छोड़ो, मुद्दे ही बात करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि बाय डिफॉल्ट VLAN डॉट डैट नहीं दिखा रहा ना, पर ये लो शो VLAN ब्रीफ, 5 VLAN तो है, तो ये इंफॉर्मेशन VLAN डॉट डैट में सेव हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है? मैं नहीं चाहता आप लोग बिना बात के तुक्के मारो, इट इज नॉट अ हिट एंड ट्रायल गेम। गो होम, research it from the book, from wheresoever you want to, but come to me with a legitimate answer. I hope you will come with an answer. Okay. देखो, अब देखो, इतनी चीज क्लियर हुई है, हम स्विचेस पे क्या कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. Now one thing friends, one very important thing. See, this is the client, right? You see, that's a client, right? On the client, if I create VLAN 2, तो नहीं होगा ना? No, sir. Okay. कोई VLAN create नहीं कर सकता मैं इस पे? No. Okay. Now let me connect two computers here. ठीक है, yellow F03, yellow F04. Let me give it an IP address 3.3.3.1, 3.3.3.2. Done? Yes, sir. Done or not? Yes, sir. Yellow. अब here it's a computer. ठीक है, yellow. Three dot 3.3.4. Both of them, will they be able to communicate or not? Why? By default तो VLAN 1 में ही है. Okay. Now if I put this F02 in VLAN 2, then हाँ, No. VLAN 2 interface F02 switch port mode access, switch port will access VLAN number 2. ठीक है, और अब F03 पे interface F03 switch port mode access, switch port will access VLAN number 2 करा था 3 करा था? 2 किया था, ये लो, ठीक है? तो will they be able to communicate or not? Yes, sir. Why? Because of tagging. Different. Because VLAN तो I have created only on the server, नहीं कर रहा भाई, VLAN तो I have created only on the server. एक मिनट, मैंने इस पे दिया था, उस पे दिया था, मैंने कोई और पोर्ट डाल दिया इधर। मैंने F02 तो ट्रंक है, F01 है, F03 को डाला है मैंने VLAN 2 में, F03 ये वाला है, IP एड्रेस क्या है 3331, और इधर F02 को डाला है, IP एड्रेस क्या है 3334। कम्युनिकेट तो करनी चाहिए। किस पे? अरे देख, सर्वर पर enable show VLAN brief, server पे I have created or not? Yes, sir. So if it is created on server, then this switch
do show VLAN brief. It already has that information 2 3 4 5 6, and here also show VLAN brief 2 3 4 13 तो मैंने खुद क्रिएट करे थे, और यहाँ पर भी do show VLAN brief VLAN 2 3 4 5 6 है वो तो, है ना। तो अगर अब ये F03 VLAN 2 को बिलोंग करता है और ये भी VLAN 2 को बिलोंग करता है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर स्विच यू आर रनिंग इज VTP वर्जन 1, सो मेक इट अ वर्जन 2। समझे भाई? ट्रांसपेरेंट स्विच पे इट वाज रनिंग वाज VTP वर्जन 1 ना, Yes, sir. तो देयर वाज अ मिसमैच और नॉट। अब तो कर लेने चाहिए यार। क्यों बदतमीज हो रहा है? यहाँ से गया गया गया, ये लो, इसने ड्रॉप कर दिया। क्या इसके ऊपर ट्रंक बन गई है क्या? डू शो इंटरफेसेस ट्रंक। F01 तो ट्रंक बना हुआ है इधर, F02 इसका ट्रंक है ही नहीं, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो ये लो इंटरफेस F02 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। समझ में आई बात? सर तो पहले डेटा कैसे सेंड कर रहा था, मतलब कि सर्वर का इंफॉर्मेशन क्लाइंट पे चाहिए। वो उसके पास जब से मैंने इस डिवाइस को रीलोड करा था, नेटिव ही रहना कोई फंडामेंटल नहीं है। जब मैंने इस डिवाइस को रीलोड करा था विदाउट सेविंग एनीथिंग, देन बाय डिफॉल्ट बोथ द पोर्ट्स आर इन डायनेमिक फोटो, Yes, sir. राइट। और यहाँ से इस बंदे ने तो नेगोशिएशन मैसेज भेजा नहीं, और इसने नेगोशिएशन मैसेज भेजा, तो इन दोनों की भी देखो जरा ट्रंक नहीं बनी होगी फिर तो शायद। डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, इन दोनों की तो ट्रंक बन गई क्योंकि वो उसमें थे, क्लाइंट थी कि हाँ मैनेजमेंट डोमेन में थे, ये अलग था तो ये नहीं बन पाया। ठीक है, तो अब हाँ, अबे ट्रंक होगा तब तो टैग होके जाएगा बेटा, बिना ट्रंक के कैसे फ्लो करेगा? इसको इसको वो दिखाई नहीं रहा वो ट्रंक है, वो नेगोशिएट कर ही नहीं रहा उसके साथ, तो फिर जब वो ट्रंक है ही नहीं तो वो टैग लेके कैसे जाएगा? नहीं तो मेरा सिस्टम VLAN 1 नहीं है तो हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? हुआ था अभी, हुआ था पहले तो पिन दिया उससे था। पहले सक्सेसफुल वाला वो VLAN 1 के लिए तो हो गया था, लेकिन VLAN 2 के लिए थोड़ी होगा। नहीं मैं 1 की बात कर रहा हूँ सर। अब वही बात कर रहा है, उसके लिए हो जाएगा, वो तो करके दिखाया भी कि हो जाएगा। वो तो क्या हो गया तेरे को? मैं स्टार्ट कर दूंगा। कोई नहीं, अब ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ लेट मी डू वन थिंग, दिस F03 एंड F04, ठीक है, क्या इस स्विच पे मैं VLAN क्रिएट कर सकता हूँ? डू शो BTP स्टेटस, कैन आई क्रिएट अ VLAN ऑन दिस स्विच और नॉट? VLAN 31 नहीं हो रहा क्रिएट। अब ये लो इंटरफेस रेंज F03 4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 31, ये देखो हो गया। नाउ डू शो, अब डू शो VLAN ब्रीफ। VLAN 31 है यहाँ पर? नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो दोनों के दोनों सेम VLAN में है ना, तो क्या ये कम्युनिकेट कर लेंगे या नहीं करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? Because VLAN doesn't even exist on this board. Okay, then see that what happens to F03 and F04. Let me run this.
डू शो VLAN brief। अरे पोर्ट नंबर 1 2 3 4 को शो नहीं कर रहा है ना। ओके, डू शो इंटरफेसेस ट्रंक। पोर्ट नंबर 1 एंड 2 आर ट्रंक, तो पोर्ट नंबर 3 और 4 गए तो गए कहाँ? ना तो वो ट्रंक है ना वो किसी VLAN को बिलोंग करते हैं, वो गए तो गए कहाँ, कैसे पता करूँ? शो मैक एड्रेस पे शो मैक को ये ले, डू शो मैक एड्रेस टेबल, इसमें क्या दिखेगा वैसे? हाँ, दैट्स एन आंसर, डू शो इंटरफेस F03 स्विच पोर्ट। ठीक है, समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ? नाउ सी, बताओ उसको देख के क्या बताऊँ? एक्सेस मोड VLAN is 31 which is actually inactive। हाँ क्या ना? Yes, sir. अब इसके दो तरीके हैं, either you go on this ports both the ports and you change the VLAN to some VLAN that actually exists in the VDP domain, or other thing you go to the server and you create VLAN 31, sorry। हो गया क्रिएट? नाउ will they be able to ping or not? Yes, it's a successful thing। Any issues with that? Issue हो गया। ये हमेशा होता है मेरी क्लास में, एक दो बार साला मेरे सिर पे गिर चुका है ये। कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। अब ये चीज समझ में आई है जो मैं बोलना चाहता हूँ। Yes, sir. नाउ फ्रेंड्स, वन थिंग इज, मैं इस स्विच से, इस कंप्यूटर से इस स्विच को टेलनेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? बोलो क्या लिखूँ? इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन VTY 0 Password. Exit. Enable password. हो गया। अब यहाँ पर जाओ और बताना जरा टेलनेट के लिए क्या कमांड लिखूँ? टेलनेट चलो फिर IP दो, टेलनेट होस्ट नेम, ये लो टेलनेट, इसका पहले तो होस्ट नेम रख दो, लो होस्ट नेम स्विच 5, ठीक है, ये ले टेलनेट। Sir, IP address बताइए। हाँ तो स्विच 5 तो वैसे भी कोई कमांड होती नहीं है, होस्ट नेम की भी कमांड होती है, कौन बोला? अब क्या करूँ? मैक एड्रेस को टेलनेट करते होते हैं? Sir, IP address दे दीजिए बोर्ड पे। किस पे? Switch पे। स्विच के पोर्ट पे, बताओ कैसे? तो Interface value, IP address। अब पहली बात तो ये F02 पोर्ट जो है दैट बिलोंग्स टू VLAN 2, राइट? राइट, Yes, sir. and VLAN 2 belongs to which network of 3, right? So I will give it some network of, क्या बोल रहा है? Friends, you cannot assign an IP address on any interface of a switch, right? But now, first of all, one thing is called virtual interface. What is it? Virtual interface. That means actually this interface doesn't exist, but it is just a virtually it exists, and this is called switched virtual interface. That means SVI. That means SVI, switched virtual interface. Now, what happens with the switched virtual interface is that actually, friends, you cannot assign an IP address to a switch on an interface of a switch, right? But you will create a virtual interface, interface VLAN 1. ठीक है, interface VLAN 1, again config interface IP address दे दिया IP address, Yes, and sir. then friends, because VLAN 1 is what already exists on a switch, right? So we have to give is no shutdown, but
if you want to give it to any other VLAN, let's say VLAN 2, right? Interface VLAN 2, as soon as you hit the enter it will say up and up, क्योंकि VLAN तो you have created already manually ना, right? So that means that interface do exists. Then simply give here IP address, whatever you want to give and whatever the subnet mask. You don't have to give the no shutdown here. अब देखो बात को समझो. This computer belongs to which VLAN? Or the computer doesn't belong to VLAN 2, but whenever the tag will come from it, so the VLAN 2 tag will be added. Yes or no? So now, if you want to do the telnet from here to this switch, you can telnet only and only VLAN number 2, because they are in the same network. But if you want different VLAN to communicate, then you need a layer 3 device. Inter VLAN routing. ये लो interface VLAN 2. आप आ गया? IP एड्रेस हो गया. आप जाओ यहाँ पर टेलनेट हो गया. ABC enable ABC. तो स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस का क्या रोल है वो समझ में आया. और SVI का रोल सिर्फ यही नहीं है. SVI हैज अ लॉट ऑफ रोल्स, बट फॉर नाउ इट्स फाइन. ये जाग रहा है, सो रहा है? जाग जा बेटा, जाग जा. हैं भाई, if you want to take the telnet of a switch, if you want to remotely access the switch, then definitely you should have something ना. और स्विच को IP एड्रेस देने के भी भाई किसी भी IP एड्रेस की 3600 रिक्वायरमेंट है, right? There are thousands of needs of giving an IP address to a device. Yes or no? So if I want to get that benefit over the switch, then obviously I will miss that. I will not be able to do that. I can do it like this. तो इसमें इस स्विच के पास तो फ्रेम जाएगा, उसमें आईपी एड्रेस जाएगा. थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करो. ये लो होगा ये. अब यहाँ से क्या जा रहा है, कंप्यूटर के पास से तो लेयर 4 से शुरू हुआ है. सोर्स पोर्ट 1026, डेस्टिनेशन पोर्ट 23. हाँ या ना? TCP accepts a maximum window size of 65535 bytes. TCP add maximum segment size option to the TCP synchronization header with segment size equal to 1460 bytes. तो obviously कम है उससे. Device sends the synchronization segment. समझ आ रहा है मैं क्या हो रहा है? Segment information sequence number is 0 and acknowledgement number is 0 and the length is 24. ठीक है. अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये लग गया सोर्स IP 3334, डेस्टिनेशन IP 33333. फिर इसने भेजा आगे डाटा लिंक लेयर पे, इट इज ओनली वॉचिंग इज सोर्स मैक वर्सेस डेस्टिनेशन मैक, दैट्स इट. ठीक है. फिर उसने उसको लेयर 1 पे थ्रो कर दिया. नाउ इट गोज फर्दर. तो व्हाट द स्विच विल डू, स्विच विल सिंपली लेयर 1 पे इसने रिसीव करा, लेयर 2 पे सेंडिंग द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस फाउंड इन द मैक टेबल, और वो यूनिकास्ट है तो उसको सेंड कर रहा है. सिर्फ मैक एड्रेस के बेस पे ही सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है. बस तो फिर ऐसे ही ये स्विच जो है सारे के सारे उसी के बेस पर सेंड करेंगे. अब जब यहाँ पर पहुंचा है तो देखो फास्ट इथरनेट 01.1q हेडर, IP सोर्स हेडर 3334 फॉर 33333, डेस्टिनेशन पोर्ट 23 है. फिर ये सोर्स पोर्ट 23, डेस्टिनेशन पोर्ट 1026. सही है ना? अब यहाँ से इसने वापस इधर से मैसेजेस जनरेट करके सेंड कर दिया. मतलब अब मुद्दे की बात क्या है कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो सिर्फ कंप्यूटर और यहीं पर गया था इस पे. हाँ या ना? एंड डिवाइस पे गया था ना, और तो कहीं नहीं गया. बस तो फिर तो मतलब वो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा है फिर. तो विलेन टू विलेन को वो बैक एड्रेस सेट और उसी पे काम कर रहा है. हाँ ये देख, ये देख, इस स्विच का मैक एड्रेस मुझे देखना है. डू शो वर्जन, ये लिखा है बेस ईथरनेट मैक एड्रेस, ये लिखा है. बस यही इस कंप्यूटर का, इस स्विच का मैक एड्रेस है. ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने. अब इस स्विच पे जाओ, शो
MAC address table. E300 E300 उसको fast Ethernet 01 पे learn हो रहा है. See, I told you that on a single interface the switch will learn the same MAC address cannot be learned on multiple ports. हाँ या ना? क्या learn हो रहा है? नहीं हो सकता. But the multiple MAC addresses can be learned on a single port. अब उस कंप्यूटर इस स्विच के लिए switch number 1, for this switch the MAC address of this MAC address, this MAC address, this MAC address, this MAC address of this switch, all the MAC addresses are associated on F01 only or not? So that's it. देख लो फिर कितने दिखा रहा है F01 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन से हैं ये? एक, पहले तो यही 1 2 3 4 5 6 7 और एक इस इंटरफेस का है, इस इंटरफेस का लर्न कर रखा होगा इसने. समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है. तो फिर दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट VDP. Now see, let us get started with STP. ये लो VDP प्रूनिंग देख लो. VDP प्रूनिंग का बस एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और कुछ नहीं अभी. ठीक है? हाँ कैसे? स्विच 1 ठीक है. इस तरह से कई सारे स्विचेस आपस में कनेक्टेड है. सो हियर दिस पर्टिकुलर बिलोंग्स टू VLAN 2, राइट? एंड देयर इज नो द VLAN 2 का कोई भी बाय डिफॉल्ट. अब देखो यार, on the switch number 4 there is a active user for VLAN 2, yes or no? Yes, sir. But let's say on switch number 2 or switch number 2 there is no active user for VLAN 2. On switch number 5 there is no active user for VLAN 2. Here there is no user, yes, 2 users, and here 3 users. ठीक है? And here also apart from this there is 2 more users. ठीक है? तो फिर friends, first of all of them are trunks for sure or not? Okay. Now see what's happening. VLAN 2, the switch number 4 has received the information and it's for VLAN number 2, right? Number 1. If I'm running here STP, that means from VLAN 2 to VLAN 10 exists on every switch or not? Yes, sir. But what will happen through the VTP pruning? They will keep on getting the messages, or switch number 4 will actually come to know कि भैया or other switches will come to know, all the switches know, right? With VTP pruning all the switches already know कि VLAN 2 के users सिर्फ switch number 4 पर है, switch number 6 पर है, and on switch number 7 nowhere else. ठीक है? ठीक है? तो व्हाट द स्विच नंबर 4 विल डू, स्विच नंबर 4 नोज कि भाई वो वाला मैक एड्रेस पे जाने के लिए आई जस्ट हैव टू थ्रो इट हियर, बिकॉज इसके पास तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना? नाउ द स्विच 2 नोज कि स्विच 5 पे देयर इज नो एक्टिव यूजर, तो मैं यहाँ पर क्यों भेजूँ फिर? हियर देयर इज नो एक्टिव यूजर, तो व्हाई शुड आई सेंड, राइट? बट हियर देयर इज ए एक्टिव यूजर थ्रू दिस ट्रंक, राइट? तो यहाँ से भी सेंड नहीं करेगा, यहाँ से भी सेंड नहीं करेगा, बस इसको यहीं से सेंड करेगा. ठीक है? उसके बाद द स्विच नंबर 3 विल नॉट सेंड इट फ्रॉम हियर बट विल लुक अप एट द कैम टेबल. अगर कैम टेबल में इट हैज द एंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर दिस मैक एड्रेस, राइट?
this MAC address, it has, if it has the entry, then it will only send it from here, but and only send it from here मतलब यहाँ से send नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको नहीं पता ये वाला MAC एड्रेस तो दोनों से सेंड करेगा और फिर वो सही जगह पर जाएगा। Yes, sir. VTP प्रूनिंग समझ में आया? Yes, sir. सो दैट मीन्स रादर देन, अब नाउ अगर VTP प्रूनिंग ना हो तो क्या होगा ये समझो। इसने यहाँ सेंड करा, इस स्विच ने यहाँ भी सेंड कर दिया, यहाँ भी सेंड कर दिया, यहाँ भी सेंड कर दिया, यहाँ जाके तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो इस स्विच ने यहाँ पर दोनों पे तो सेंड कर दिया, लेकिन अपने ट्रंक से भी तो सेंड करेगा। ये ले भाई, ये भी करेगा, ये ले मैं इधर भी करूंगा। लूप बन गया? लूप बना है नहीं बना? बस VTP प्रूनिंग से वो चीज भी उग जाती है। हालांकि अब देखो डिवाइसेस के अंदर क्या हो रहा है, द सेम वे लूप बना, ये चीज समझ में आई ना कि लूप बनता है, Yes, sir. right? By default a loop is getting formed. Why the loop is getting formed? Now try to understand it, right? Now just try to understand. Switch number 1, switch number 1, switch number 2, switch number 3 and switch number 4, they are connected together. Hmm. All the switch ports belong to VLAN number One. 1, या फिर चलो छोड़ो, ये भी ट्रंक है, ये भी ट्रंक है, ट्रंक 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 ट्रंक। यहाँ पर देर इज अ यूजर फॉर VLAN नंबर 1 एंड यहाँ पर देर इज अ यूजर फॉर VLAN नंबर 1। बाय डिफॉल्ट तो सारे पोर्ट्स VLAN 1 के है ना। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग, source A is 0A, destination MAC, source MAC is 0A, destination MAC is 0B. The information is sent here. Switch 1 will definitely perform a broadcast from both the trunk ports or not? Yes, sir. ये ले भाई, broadcast मारा, broadcast मारा। Switch number 2 ने broadcast मारा, है ना? Hmm. Switch number 4 ने broadcast मारा, Switch number 3 ने फिर broadcast मारा। करा कि नहीं करा? या छोड़ो, ऐसे देखो चीज को जरा। स्विच नंबर 1 के पास रिसीव हुआ, एज सून एज इट इज रिसीव्ड स्विच 1 विल पुट द एंट्री कि भाई 0A मैक एड्रेस बिलोंग्स टू VLAN नंबर, बिलोंग्स टू पोर्ट नंबर F01, राइट और रॉन्ग? Right. अब switch 1 doesn't know where is this, so switch 1 will send it from here. अगर यहाँ पर सेंड हुआ है तो switch 2 will learn that this particular MAC address 0A is at this port or not, Yes, sir. and ये इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट? तो switch 4 knows that this MAC address is here, right? 0A MAC address is here, हाँ या ना? Yes, sir. Now it will send it here and here as well. So according to him, switch number 3, the MAC address is here 0A Hmm. and he will also forward it, right? So friends, अब switch 1 पर भी आ गया कि यही वाला MAC address 0A यहाँ पर भी है, हाँ या ना? Yes, sir. हो गया? Now whenever the same MAC address is learned on 2 different ports of a single switch, that means a loop has been generated. Is that clear or not? एक loop generate हो गया ना? हो गया? और MAC एड्रेस ने अपनी पोजीशन इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे फ्लैप कर ली ना, तो यू विल गेट अ मैसेज MAC flap. If you are getting this message, that means loop, right? And do I really have to mention that loop is disastrous for the network? Yes sir. मैंने कहा मेरे को ये मेंशन करने की जरूरत है कि ये बड़ा डिजास्टरस है? यस सर। साला बिना सोचे समझे यस और नो करना होता है। सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। कब सुधरोगे? यस सर। अब देखो फ्रेंड्स, loop is not only created on the switch, but the switch 1 will broadcast it from here as well. So he has learned here and from here as well. So the same MAC address has been learned here as well. The same MAC address is learned here as well. The same MAC address is learned here as well. तो स्विच 1 को तीनों पोर्ट पे लर्न हो गया, स्विच 2 को 2 पोर्ट पे, 3 को भी 2 पोर्ट पे और स्विच 4 को भी 2 पोर्ट्स पे। द सेम MAC address has been learned or not?
So every switch will show the MAC flap or not? This is how a loop is generated in a switch. And this is what I actually want to avoid. Right? We want to avoid the loops. समझे? Now, number one, friends. Very first thing. कि by default, every device, right? By default, whenever two routers are connected with each other, तो वो router आपस में connect होते ही क्या करते हैं? Very good. राउटर्स जब दो राउटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ बोल दो, ऐसी तैसी कराते हैं। बताओ क्या करते हैं? हाँ, राउटिंग चल रही है तो नेबरशिप बनेगा। व्हाट इज द रीजन फॉर नेबरशिप? इज देयर एनी पैकेट विच इज फॉलोड? हाँ, ये बोलो ना, दैट इज कॉल्ड रियली एन आंसर। आई रियली अप्रिशिएट दैट। क्या नाम भाई जी? हिमांशु, बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स अ हेलो मैसेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नेबरशिप और नॉट? बस तो फिर जब ये मल्टीपल स्विचेस आपस में कनेक्ट हुए हैं तो स्विचेस आर आल्सो शेयरिंग द हेलो मैसेजेस विद ईच अदर और नॉट? द हेलो मैसेजेस आर कॉल्ड बीपीडीयू, मतलब ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। Bridge protocol data unit. BPDUs, it actually serves as the hello message of a switch. And always remember that the switches, as soon as the two switches are connected with each other, they start exchanging the BPDUs with each other. समझ में आई बात? जैसे ही दो switches आपस में connect होंगे तो they will start exchanging the BPDUs with each other. Okay. अब सबसे पहले अबाउट STP आई वुड से कि it's a layer 2 protocol which is used to avoid the loops. Layer 2 protocol which is used to avoid the loops. ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल में हम लोग अवॉइड करेंगे क्या? लूप्स। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात, ओरिजिनली जो ये था ना STP process, originally STP was given by DEC, that means decimal digital equipment corporation। ठीक है, सबसे पहले DEC ने दिया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। दैट वाज द फर्स्ट कंपनी वाज गिवन, राइट। एंड नाउ व्हाई इट वाज गिवन इज द मेन क्वेश्चन। कि पहले स्विच नहीं होते थे, पहले क्या होते थे? अब मार मत दो, ब्रिज, राइट। पहले ब्रिजेस होते थे ना, तो देयर वर द ब्रिजेस एंड द ब्रिजेस दे क्रिएट्स अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। व्हाई? that they don't have we cannot create the VLAN, you said, right? So friends, see, the answer would be, जो क्वेश्चन, जो आंसर आपने मुझे बोला ना कि डोंट हैव VLAN, ये पता है आंसर किस क्वेश्चन का है? ये क्वेश्चन ये है कि इफ आई why the broadcast domain cannot be broken on a switch, on a hub, then you will say कि because bridges cannot can generate the VLAN. VLAN things they don't have, that's why broadcast domain cannot be broken, right? But my question is that why the bridge was having a single broadcast domain? Because every switch port belongs to a single domain. Every port of a bridge belongs to a single domain. That's why, right? Right? वहाँ पर मैं किसी भी टाइप से अगर मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता था। So first of all, this thing STP process was actually given on the bridges, right? It was given for the bridges, on the bridges. But later on, जब switch आ गए, switch के अंदर broadcast domain was able to break, that's good. But still, even if you break the broadcast domain, and if all the ports are not trunk ports, but they belong to VLAN 1, then also the loops will be generated or not?
sir. That is what I actually don't need. So that's the reason that STP process was implemented on the switches as well. Am I clear? Yes, sir. Good. इसकी हिस्ट्री समझ में आई, कहाँ से आया, क्यों आया, मुंह उठा के नहीं आया. अब देखो, first of all friends, there are some terminologies. First of all, there are some terminologies which are associated with STP, Spanning Tree Protocol. ठीक है, वो terminologies क्या हैं? Number one, root bridge. See, you can call it a root switch, but it is called a root bridge because earlier it was given on a bridge, right? So the legacy continues. Bridge के basis पर नाम दिया गया था, तो still it is a root bridge, not a root switch. Am I clear? Yes, sir. Good. Second thing is designated port. I will call it a DP. Third thing is non-designated port. ठीक है, NDP. अब ये जो NDP है ना, ये NDP फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं. एक होता है रूट पोर्ट RP और एक होता है ब्लॉक्ड पोर्ट BP. इस ब्लॉक पोर्ट को दूसरा नाम आप दे सकते हो ऑल्टरनेट पोर्ट, ऑल्ट पोर्ट. समझे? These are the terminologies which are associated with the STP. But before that, I told you something about BPDUs, right? Right or wrong? Yes, sir. So friends, पहले BPDUs के बारे में देखते हैं. BPDUs are nothing else but just the hello message of a switch, Yes. right? These BPDU can be of two types. Number one, configuration BPDU. Number two, TCN BPDU. What is TCN? Topology change notification. Configuration BPDU and topology change notification BPDU. Now try to understand. Friends, as soon as the switches are connected with each other, ठीक है, as soon as the switches are connected with each other, तो उनकी नई नई configuration होगी ना कुछ तो. Yes, sir. That time it will be called a configuration BPDU. ठीक है. और दूसरी चीज क्या होती है? TCN BPDU. That means topology change notification BPDU. Now what is topology change notification BPDU? कि भाई by default तो जो topology है वो तो है ही, लेकिन कोई triggered update होती है, that means topology has been changed ना. Yes, sir. So if anything has been changed, then TCN BPDU will be generated so that the others will be able to know about that. हाँ क्या ना? Yes, sir. समझ में आए दो टाइप के BPDU? Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन BPDU मतलब कॉन्फ़िगरेशन हेलो मैसेजेस, एंड TCN BPDU मतलब टोपोलॉजी चेंज की नोटिफिकेशन देने वाले हेलो मैसेज. ठीक है, Yes, sir. द हेलो मैसेजेस व्हिच आर नोटिफाइंग मी अबाउट द चेंज इन टोपोलॉजी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, पहले इन्हीं चीज़ों को देखते हैं. रूट ब्रिज, डेजिग्नेटेड पोर्ट वगैरह वगैरह क्या होते हैं. देखो दोस्त, रूट ब्रिज क्या होता है? Root bridge is something that the switch which is the central reference point for all other switches. ठीक है, and in a single flat network मतलब फ्लैट नेटवर्क मतलब जिसके अंदर सिर्फ स्विचेस ही हैं. ठीक है, इन अ सिंगल फ्लैट नेटवर्क there would be only one root bridge for a single VLAN. मतलब VLAN 1 के लिए कोई एक ही रूट ब्रिज होगा, एक से ज़्यादा रूट ब्रिज नहीं हो सकते.
VLAN 2 के लिए भी कोई एक ही रूट ब्रिज होगा, एक से ज़्यादा रूट ब्रिज नहीं हो सकते। देखो दोस्त, पहले क्या था, ये दो टाइप के थे ये, ठीक है। जो STP होता है ना, STP टोपोलॉजी पहले दो टाइप की थी, होती है अभी भी है। STP टोपोलॉजी एक टाइप क्या होता है कि CST, मतलब कॉमन स्पैनिंग ट्री, राइट। नाउ सी, कॉमन स्पैनिंग ट्री में क्या था, फॉर एवरी VLAN कोई एक ही स्विच रूट ब्रिज होगा, समझे समझे। फॉर एवरी VLAN, अगर मान लो 10 VLAN है, VLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन फॉर एवरी VLAN देयर वुड बी ओनली अ सिंगल स्विच विच इज रूट ब्रिज फॉर एवरी VLAN, ठीक है। और दूसरी चीज होती है PVST, दैट मीन्स पर VLAN स्पैनिंग ट्री। अब पर VLAN स्पैनिंग ट्री में क्या है कि अगर टोटल 10 VLAN है ना और 4 स्विचेज हैं, तो हो सकता है कि स्विच नंबर 1 एंड 2 आर, switch number 1 is the root bridge for VLAN 1 2 3, switch number 2 is the root bridge for VLAN 4 and 5, switch number 3 को मैं root bridge बनाऊंगा for VLAN 7 and 8, और switch number 4 को मैं root bridge बनाऊंगा VLAN number 9 and 10 के लिए। Am I clear or not clear? Good. Friends, this is what I can do in PVST. Per VLAN spanning tree में for every different VLAN there could be different switch which is the root bridge, मतलब लेकिन फिर भी VLAN 1 के लिए कोई एक ही रूट ब्रिज होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। नहीं समझे, नहीं समझे। स्विच 1 इज द रूट ब्रिज फॉर VLAN 1 2 and 3, ठीक है। स्विच 1 इज द रूट ब्रिज फॉर VLAN 1 2 3, स्विच 2 इज द रूट ब्रिज फॉर VLAN 4 and 5, switch 3 is the root bridge for VLAN 6 7 8, and switch number 4 is the root bridge for VLAN 9 and 10। थैंक यू सर। समझ में आई बात? कमाल है। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉमन स्पैनिंग ट्री में सबके लिए होता ही है, क्या उसको चला ले। स्विच नंबर 1 रूट ब्रिज है VLAN 1 2 and 3 के लिए, 4 5 and 6 के लिए, 7 8 के लिए, 9 और 10 के लिए। समझ में आई बात? यस सर, ये डायग्राम क्लियर है? यस सर। अब पहली बात तो आप ये पूछ लो कि मैं स्विच 1 को ही सबके लिए रूट ब्रिज बना दूं, भाई बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कॉमन स्पैनिंग ट्री चलाऊंगा। पर VLAN स्पैनिंग ट्री में जरूरत ही क्या है, पर VLAN स्पैनिंग ट्री में ही बना सकते हो। VLAN 1 के लिए दिखा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, फिर VLAN 2 के लिए दिखा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, फिर VLAN 3 के लिए दिखा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, फिर VLAN 4 के लिए दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, फिर VLAN 5 के लिए दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, फिर VLAN 6 के लिए दिखा रहा है, फिर VLAN 31 के लिए दिखा रहा है। तो हर VLAN के लिए अलग अलग इंस्टेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? दिस इज कॉल्ड पर VLAN स्पैनिंग ट्री। हर VLAN के लिए अलग अलग स्पैनिंग ट्री है। अब समझ में आई है कुछ? और अभी भी उन सब के लिए कोई एक ही स्विच रूट ब्रिज बना हुआ है, ये देख ले। ये भी ये वाला स्विच है रूट ब्रिज सबके लिए। क्या था? यही बना हुआ है सबके लिए रूट ब्रिज। सारे स्विचेस VLAN 1 के लिए भी, VLAN 2 के लिए भी, VLAN 5 के लिए भी, 4 के लिए भी, 6 के लिए भी, 31 के लिए भी,
सभी के लिए एक सिंगल स्विच वीलन रूट ब्रिज बना हुआ है। तो भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सबके लिए कोई एक सिंगल भी रूट ब्रिज हो सकता है। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान करो। जो चीज़ मैंने अभी बताई नहीं है उसके बारे में तुम पहले ही चल रहे हो तो भाई मेरे को फिर मेरे यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या है। मेरे को उस चीज़ पे आने तो दो, फिर बताऊंगा। रुक जाओ 2 मिनट, आगे वाले क्वेश्चन पूछ लो जो सारे फ्लो है उसकी तैसी कर दो। रुक जाए करो। हाँ बोल। अब मैं जो मेन चीज़ बताने वाला था वो तो मैं भूल ही गया। मुबारक हो आप लोगों को। बस जो रूट ब्रिज होता है वो बाकी सबके लिए एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट टाइप से काम करेगा। दूसरी चीज, जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या करेगा कि whenever the switches are communicating with each other, whenever the switches are sending the BPDUs, तो always remember that, रुको 1 मिनट, पहले इसके बारे में मैं एक बात और बताऊंगा रूट ब्रिज के बारे में। At the initial startup, initial startup means as soon as the switches are connected with each other, as soon as the new switches are connected with each other. So if as soon as they are connected, every switch consider itself as the root bridge। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी स्विच अपने आप को रूट ब्रिज समझेंगे। और ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, इट इज generated and sent by the root bridge of that VLAN। उस पर्टिकुलर VLAN का जो भी रूट ब्रिज है, that particular root bridge will generate and send the configuration BPDU and others will relay it further। कुछ समझ में आया कि अगर 4 स्विचेज है, 4 में से कोई एक ही रूट ब्रिज है, ठीक है, एक ही होगा रूट ब्रिज, तो जो रूट ब्रिज है वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को जनरेट करेगा और बाकी सबके सब उस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को सिर्फ रिले करेंगे, मतलब हेलो मैसेजेस को आगे आगे रिले करेंगे। अगर स्विच 1 2 3 4 में स्विच 1 इज द रूट ब्रिज फॉर ऑल VLAN, ठीक है, तो ओनली स्विच नंबर 1 विल जनरेट द कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एंड सेंड करेगा और बाकी सब स्विचेस उसको सिर्फ और सिर्फ, स्विच 1 ने स्विच 2 को और स्विच 4 को दिया, switch 2 will give it to switch 3, switch 4 will also give it to switch 3 और फिर switch 3 will give it to 2 and 4 again। तो मतलब switch 1 का BPDU, इधर देखो, switch 1 ने दिया 2 को और 3 को, 2 ने दिया 4 को, ठीक है, और 4 फिर इसको देगा, ये फिर आगे देगा, हाँ है ना, ठीक है। तो इसको पता लग गया कि ये एक पाथ है या नहीं है, और फिर यहां से इसको पता लग गया कि ये दूसरा पाथ है या नहीं है। स्विच नंबर 2 को द बीपीडीओज ऑफ स्विच नंबर 1 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिस रूट एंड आल्सो फ्रॉम दिस रूट एज वेल, हाँ है ना। एंड देन स्विच 2 विल जज कि विच रूट इज द बेस्ट रूट टू रीच द रूट ब्रिज। भाई सेंट्रल पॉइंट उनका रूट ब्रिज है, तो एवरीवन वांट्स टू रीच द रूट ब्रिज और नॉट, एंड व्हेनेवर यू वांट टू रीच एनीवेयर, if you want to go anywhere then you will be finding the best path or the ऐसी कोई भी path, best path, हाँ है ना, that's what it will calculate the switches। समझ में आई बात। but in the starting what I'm saying is कि at the initial startup every switch consider itself as the root bridge। that means what will happen, therefore yes, every switch will generate
कॉन्फ़िगरेशन BPDU, हाँ है ना, Yes, sir. and then there would be an election for sure, Yes, sir. there would be an election and one will be root bridge, हाँ या ना। Yes, sir. भाई उस फैमिली में कोई एक ही तो डैडी रहेगा ना, एक से ज़्यादा डैडी तो नहीं हो सकते। रूट ब्रिज इज लाइक अ डैडी, राइट, राइट और रॉन्ग, बस तो वही तो हो रहा है। शुरू में सबने अपने आप को गुंडा समझ लिया, लेकिन बाद में उन सभी गुंडों में जब एक तो बाप निकलेगा ना, दाऊद इब्राहिम निकलेगा एक, है, हाँ गॉड फादर। शुगर है तूने भी वो नहीं बोला, क्या नाम था उसका, तब उग्रवादी समय, बिन लादेन नहीं, सुल्तान मिर्जा। चलो दुआ में याद अभी, हाँ दुआओं में याद रखना। अभी आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हाट इज अ रूट ब्रिज, हाँ है ना, Yes, sir. बट आई डिड नॉट टेल यू, और ओके लेट मी टेल यू दैट हाउ रूट ब्रिज इज इलेक्टेड, करेक्ट। Yes, sir. रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसीजर, नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसीजर बाद में देखें, पहले सिर्फ टर्म्स समझ लो क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज डेजिग्नेटेड पोर्ट, यार रुक जाओ यार, कर ही लो, बेटर है, ये लो। रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, नंबर वन प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी क्या होती है, इट्स अ नंबर जिसकी रेंज 0 से लेकर के 65535 तक हो सकती है। कहां से कहां तक, 0 से 65535, एम आई क्लियर। Yes, sir. अब ये जो इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी इसकी रेंज हो सकती है, बट आउट ऑफ दिस रेंज इसमें होता है, देखो रेंज देखो कैसे कैसे होती है। टोटल नंबर ऑफ वीलैंस कितने होते हैं, 105. थप्पड़ मारूंगा, 105, 4096 होते हैं। सबसे पहला नंबर है 0, प्रायोरिटी की एक वैल्यू हो सकती है 0, अदर वैल्यू कुड बी 4096, अदर वैल्यू कुड बी 8192, अदर वैल्यू कुड बी 12,000 आएगी, 12,884। अबे 8192 में 4096 ऐड करो, है 8,192, मेरे को 8,192 ऐड नहीं करने, मेरे को 4096 ऐड करने हैं। शाबाश, तेरा कैलकुलेटर बहुत फास्ट है। 12,288, फिर 16,384, फिर हाँ 20,480, फिर 24,576, फिर 28,672, फिर 326 32768, फिर 32768 के अलावा बाद कर लो यार इतने में, हाँ 36,864 प्लस 4096 40,960. प्लस 4096 प्लस 4096 ही ऐड कर रहा है ना, बोले जा। 53,248, फिर 57,344, देन बस बस इसके अंदर इफ यू ऐड 4095 मोर द वैल्यू वुड बी 65536, राइट। सो 65536 तो दोस्त वैसे भी नहीं हो सकती, तो इट विल एंड अप एट 61440।
तो these are the numbers of priority that you can give. This is the only reason कि मैं कैलकुलेट करवा करवा के लिख रहा हूँ ताकि याद रहे, समझ में आए बात. ठीक है, प्रायोरिटी की इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है एंड बाय डिफॉल्ट द प्रायोरिटी की वैल्यू इज 32768. 32,768 इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू. अब इस प्रायोरिटी के अंदर भी दो चीज ऐड होती है. ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द रूट ब्रिज. ठीक है, तो रूट ब्रिज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर वन प्रायोरिटी, नंबर टू मैक एड्रेस. Right, between the two switches, if one switch has got the lower priority, then that will be the root bridge for sure. Right, you don't have to look at the MAC address. ठीक है, ठीक है. अब ये priority is further made up of two things. Number one, this number plus extended system ID. सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी बोल लो या सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी बोल लो, जो बोलना है बोल लो. ठीक है, तो दिस इज इट. नाउ व्हाट इज दिस सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी? नथिंग एल्स बट जस्ट द VLAN आईडी इज कॉल्ड सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी. ये देख लो, ये देखो, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री. सी प्रायोरिटी इज 32769. अब एक्चुअली द प्रायोरिटी इज ब्रिज आईडी, दैट मींस इस पर्टिकुलर ब्रिज की आईडी इज 32769. उसमें से प्रायोरिटी इज दिस एंड सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी इज 1. तो व्हाट इज दिस फॉर VLAN 1, दैट्स व्हाई इट इज एडेड 1. और यहां पर VLAN 2 के लिए सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी इज 2. हाँ या ना, समझ में आई ये बात? जस्टिफाइड है? गुड. This is how priority is decided. Now between the two switches, अगर किसी एक स्विच की प्रायोरिटी और दूसरे स्विच की प्रायोरिटी से कम है, तो for sure that particular switch will become the root bridge. That also instantly it will become the root bridge. Am I clear? But अगर उसके साथ वाले स्विच की भी प्रायोरिटी उतनी ही है, both the switches have got the same priority, then none of them can become the root bridge. Then they will look at the MAC address, and MAC address के बारे में वही चीज है, lower is the priority, more preferred it was, है ना? और MAC address में भी same thing, lower is the MAC address, more preferred it will be. Is that clear or not clear? Yes, sir. Sure to all of us? Yes, sir. Very good. This is how root bridge is elected. चले आगे? Yes, sir. All right. Now friends, next very interesting thing is designated port. अब देखो, what is designated port? नहीं, DR BDR को इससे कंपेयर मत कर, बहुत डिफरेंस है. DR BDR, why do we need a DR and BDR? Why do we need a DR? पक पक पक. हाँ, to reduce the adjacencies, this is the answer. ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि why do we need, तो आप मुझे बता रहे हो OSPF में यूज करते हैं, सीरियल के बीच में यूज 0 होती है, इसमें वो होती है, उसमें वो होती है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क में यूज करते हैं. अरे मैं वो नहीं पूछ रहा. I told you, I emphasize this thing. और जब OSPF कर रहे थे, I emphasize this thing that whenever anyone asks you कि why do we need a DR and BDR, then simply say to reduce the adjacencies, right or wrong? Don't forget that friends. कोई रीजन होता है, इसीलिए मैं बातें बोलता हूँ एम्फेसाइज कर करके. फालतू बोलने की मेरे को भी बहुत आदत है, लेकिन पढ़ते हुए टाइम नहीं. चलो, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट, इट इज द पोर्ट through which BPDUs are transmitted. ट्रांसमिट होना मतलब सेंड होना, है ना? तो BPDUs are transmitted through a designated port. Is that clear? बस अभी इतना बहुत है DP के बारे में. और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होते हैं? हाँ, लगा लो दिमाग. It is the port through which BPDUs are. It is the port on which BPDUs are received. सही है?
Yes, sir. Now the ports on which we are receiving the BPDUs, those ports are called NDP, non designated port. Now non designated port further दो टाइप के होते हैं, root port and block port. Got it? Yes, sir. Now what is a root port? रूट पोर्ट, इसको मैं हर जगह पर ना आरपी लिखूंगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द रूट पोर्ट? समझो चीज को। रूट पोर्ट क्या है? इट इज द पोर्ट which provides the best path to reach the root bridge, ठीक है, to reach the root bridge from the non root bridges। हर एक नॉन रूट ब्रिज से, on every non root bridge, from every non root bridge, what is the best path to reach the root bridge? The port will be elected as the root port. Am I clear or not? Okay. And also one thing, on every non root bridge there cannot be more than one root port, ठीक है। If it is, then loops are created again. That's not what I want. I don't want to create the loopbacks again. I don't want to create the loops again, right? Now see, election procedure. Ready? Yes, sir. Friends, the first thing in the election procedure is lowest cost to reach root bridge। भाई सबसे पहली चीज तो पैसा है ना भाई, पैसा आता है ना सबसे पहले भाई। Yes, sir. बस तो अब देखो, always remember cost is actually assigned to a लिंक पे, किस बेसिस पर? मैक एड्रेस के बेस पे कॉस्ट असाइन होती है, मरो दो। हाँ, बैंडविड्थ के बेस पे। मैक एड्रेस के बेस पे कॉस्ट कैसे असाइन होती है? क्या हो गया तेरे को? आज तो बाइकी बाइकी बातें कर रहा है उससे। हाँ कर रहा है, अभी देख, अभी देख। देखो दोस्त, कॉस्ट, कॉस्ट के लिए वहां पर एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था OSPF में, 100 Mbps डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, है ना। बट यहां पर प्लीज उसको इस्तेमाल मत करना। ये कॉस्ट इज प्री डिफाइंड, वी हैव टू एक्सेप्ट जो उन्होंने बना रखी है। और अगर नहीं एक्सेप्ट करना, नहीं खुजली हो रही है कि नहीं मेरे को दूसरा ही बनाना है, तो जस्ट डू वन थिंग, सजेशंस एट द रेट, नहीं सिस्को ने नहीं बनाई, नहीं, हाँ हाँ, suggestions@IEEE.com कर लो, जो करना है कर लो, और जब आंसर आ जाए तो मुझे बता भी देना। The cost is predefined कि whenever it's a 100 Mbps link, the cost would be 19. Whenever it's a 10 Mbps link, the cost would be 100. Whenever it's a 1 Gbps link, the cost would be 4. And whenever it's 10 Gbps link, the cost would be 2. Very good. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि साला स्पीड तो बढ़ रही है और कॉस्ट कम हो रही है। तो दोस्त आपके दिमाग में शायद फिर ये भी साथ में आया होगा कि मैंने कोई रुपीस, डॉलर, पाउंड, यूरो, मैंने कुछ नहीं बोला। इट इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। दिस नंबर शुड बी लेस, बस। हैं? हाँ मैं बोलता हूँ suggestions@INA.com कर ले फिर। यार जीरो किसी चीज की कॉस्ट कैसे हो सकती है मेरे भाई? तुम मेरे को ये बता एक बार। किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करेंगे, ऐसी कोई चीज बताओ कि जिसको उससे डिवाइड करें तो आंसर जीरो आए। चलो मेरे को आज साइंस की, मैथ की बात करते हैं, चलो
जीरो से किसी अच्छा, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेगा तो जीरो आएगा, जीरो को किसी से जीरो को जीरो से डिवाइड करेगा, जीरो को किसी से जीरो को किसी से जीरो को किससे डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, Yes, इन्फिनिटी आएगा sir. दोस्त। जीरो बाई वन जीरो बाई टू जीरो आएगा। थप्पड़ मारूंगा। हाँ जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी आती है। जीरो बाई वन जीरो आता है। 0/1 is 0 but 1/0 is infinity। हाँ, वेरी गुड। अब एक काम करना, घर पे जाके अपने अपने जो कहीं एक हफ्ते की छुट्टी हो रही है ना तुम्हारी, एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी ना 9 दिन की अब। हाँ, तो एक काम करना, राखी वाखी बंधवा के, और जो भी तुम्हारे स्कूल टीचर है ना उनसे जाके मिलना, उनसे पूछ लेना। हाँ, चप्पल लेके जाना कि मैडम मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप मेरे गाल पे टिकाना। चलो सुधर जाओ। ओके, सबसे पहले है लोएस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट ब्रिज। ठीक है, लेट्स से कि इस डायग्राम में 1 2 3 4, let's say कि this particular has been elected as the root bridge, right? Yes, sir. Then friends, think about it. What I told you about designated port, from the designated port BPDUs will be transmitted, हाँ या ना? Yes, sir. Okay, now who actually creates the BPDU? root bridge। तो जरा common sense use करना। नहीं है? हाँ, every port of a root bridge would be actually a DP। अबे हाफ BGP कहाँ से आ गया? DP। Every port of root bridge would be a designated port, because designated port से मैं information send करता हूँ ना BPDU, and root bridge is the one who starts sending the BPDU। तो मतलब root bridge के सारे पोर्ट BPDU सारे के सारे पोर्ट BPDU सेंड करेंगे ना। That means every port is actually a DP। Yes or no? Yes, sir. Good। Now all the three switches, rest of the three switches are non-root bridge, right? So I want from this switch number 2, if I want to reach the root bridge, how many paths do I have got? Two paths। This every cost is 100 Mbps, ठीक है? So from here the cost is 19, and from here the cost would be 19 plus 19 plus 19। So obviously this port is RP, on here this port is RP, but on this switch number 4 I have got two paths, 19 plus 19 19 plus 19। टाई हो गया? Yes, sir. क्या सॉल्यूशन मिला? No. नहीं मिला। होप फॉर द सेकंड। तो लोएस्ट कॉस्ट तो एक तरीका है, ठीक है ना? पहला पहला सबसे पहली चीज है, द मोस्ट एलिमेंट्री थिंग। एंड देन द सेकंड थिंग इज लोएस्ट नेबर सेंडर ब्रिज आईडी। ठीक है, lowest neighbor sender bridge ID। now what is bridge ID? first of all let me tell you, bridge ID is nothing else but just priority plus MAC address। got it? now neighbor sender bridge priority by for switch number 4, ये क्या है? for switch number 4 neighbor sender bridge is 0B MAC address and this is 0C MAC address। ठीक है, तो neighbor sender bridge is 0B and neighbor sender bridge is 0C। हाँ है ना? Yes, sir. neighbor sender, that means my neighbor who is the sender for me। see, neighbor sender का मतलब ये नहीं है कि मेरे neighbor से और फिर मैं रूट ब्रिज तक जा रहा हूँ। neighbor sender means मेरा neighbor जिसने मुझे send किया है। क्या क्या? BPDU। भाई I'm looking that what is the best path to reach the root bridge, हाँ है ना? Yes, sir. तो he is the one who sent me neighbor sender bridge। 0B is also the neighbor sender bridge for me, है ना? तो अब इन दोनों में किसकी ब्रिज आईडी कम है? 0B की। why? getting it? हाँ, डिफॉल्ट तो प्रायोरिटी दोनों की सेम है। फॉर VLAN 1 it would be 32768 plus 1, here also 32768 plus 1, priority is same but MAC address 0B and 0C, obviously B is lesser than C, हाँ है ना? Yes, sir. so that means this should be the best route। Yes, sir. okay, now think about it। first of all, the happy I am
that this option has been eliminated, right? But the problem is I have two ways. From both these ways the neighbor sender is 0b. Yes or no? Yes, sir. इस रास्ते से भी 0b है, इस रास्ते से भी 0b है. ले वही मजाक बना दिया मजाक साले ने. हाँ क्या ना? Yes, sir. फिर से टाई हो गया ना? Earlier I was having three options 1 2 3, but now I have two options 1 and 2. Yes or no? No. Now second option is not satisfying. Neighbor sender bridge ID. Neighbor sender bridge ID from this interface is 32769 plus 0b, and from this interface also it is the same. नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो देखो, स्विच नंबर 4 से neighbor sender first of all lowest cost to reach root bridge. The cost from this way would be 19 plus 19, from this way would be 19 plus 19, and from this way it would be 19 plus 19. हाँ या ना? All the three paths are having giving the same cost, so first option has been eliminated. Second option is lowest neighbor sender bridge ID. The bridge ID of this sender is 32769 plus 0c, right? And also he is my neighbor, 32769 plus 0b. So obviously c is greater, c is bigger, so that is eliminated, right? So I have got the option 32769 plus 0b, but I have got two paths. Both the paths are through 0b, right or wrong? So obviously both the ways neighbor sender bridge ID is 32769 plus 0b. So it's a tie again. Yes or no? Yes, sir. Now any issue? All is clear with that or not? Yes, sir. Good. Now rule number 3. Rule number 3 is lowest neighbor sender port priority. समझे? Port priority by default is 128. ठीक है? By default port priority for every interface is 128. कुछ नहीं रखा तेरे मोबाइलों में, भूल जा, सुधर जा. हाँ फोन आ रहा है तेरा, तेरे बड़े जहाज डूबने वाले. The neighbor हर एक पोर्ट की प्रायोरिटी कितनी होती है? 128. And always remember friends that whenever you want to increase or decrease, you can do it by 16. Whenever you want to increase the priority, you cannot make it 129, but you can make it 128 plus 16. कितना हो गया? 144. Or if you want to decrease it, then 128 minus 16, that means 112. Right? The range is from 0 to 240. While doing the practical, I'll show you that. Cool. But for now, by default it's 128, and it can be increased and decreased by 16. Okay, let's see that. यार ये मेरा नेबर है, इस पर्टिकुलर पोर्ट की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी है? 128. और इस पर्टिकुलर पोर्ट की भी? हट यार, ये तो फिर टाई हो गया. ये तो फिर से टाई हो गया यार. है क्या? Port priority को either you can increase or you can decrease. Yes, definitely you can do that, right? But the thing is, अगर आप नहीं बढ़ा रहे, नहीं घटा रहे, तब भी तो कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए. तो वो ऑप्शन क्या है? Let's come to the fourth point. Lowest neighbor sender port ID. पोर्ट आईडी मतलब पोर्ट का नंबर. ले भाई, ये वाला पोर्ट तो है F01, ये वाला पोर्ट है F02, ये वाला पोर्ट है F03, ये वाला पोर्ट है F04. ठीक है? तो नाउ सी विद सम क्या बोलूं, पूरा फोकस. फ्रॉम राउटर 4, फ्रॉम स्विच 4, द नेबर इज F01. yes or no? The neighbor is F02. yes or no? Yes, sir. So which one is lesser, F01 या F02? बस तो फिर मुद्दे की बात यह है कि ये वाला पोर्ट आरपी हो जाएगा. समझे? Now the thing is, I also want to एक बात जरा सोचो, समझो, ध्यान दो. Number 1, designated port always transmit the video, sends the video, right?
sends the BPDU and BPDUs are received by RP and it could be block port as well. It is received by NDP. NDP could be RP or NDP could be block port. हाँ या ना? Now, so very simple thing. If I am the sender, then you are the receiver, right? If I am standing here like a receiver and you are also sitting here like a receiver, then obviously there is no communication because no one is sender. So that means the trunk down. Yes or no? बस तो फिर what I want to say is कि DP के सामने कभी भी DP नहीं हो सकता, RP ही होगा. बट RP नहीं है, RP भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है. DP के सामने NDP होगा. DP के सामने DP नहीं हो सकता, NDP के सामने NDP नहीं हो सकता. हाँ या ना? That's it. आप देखो जरा फिर यार, ये रूट पोर्ट है तभी तो है क्योंकि ये सेंड कर रहा है. ये रूट पोर्ट है तभी तो है क्योंकि ये सेंड कर रहा है. अब ये रूट पोर्ट है तभी तो है क्योंकि ये DP है. तो अब इनके अंदर DP कौन होगा, RP कौन होगा? नाउ सी भाई, 1 2 3 4 पोर्ट बच रहे हैं अभी तो. देखते रहो, दफाओ, देखते रहो. हैं साले, मजनू साले. अब देखो इन दोनों के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड दैट हु इज द DP. ठीक है. फॉर DP अगेन द सेम इलेक्शन प्रोसीजर. दिस इज द इलेक्शन प्रोसीजर फॉर RP and the same election procedure is for DP as well. ठीक है. Now first of all from here I can reach a lowest cost to reach the root bridge. Cost is 19 है ना. By this port has received at the cost of 19. Yes or no? And it has received at the cost of 19 plus 19, that means 38. So obviously it is less, so would be a DP. Here also it has received from 19 and he has received from 19 plus 19, that means this is a DP. But now more than one port cannot be root port, क्योंकि अगर यहां से ये रूट पोर्ट बन गया और ये भी रूट पोर्ट बन गया तो भैया वो इसकी इंफॉर्मेशन यहां से रिसीव करेगा, यहां से फॉरवर्ड कर देगा, और यहां से रिसीव करेगा, यहां से फॉरवर्ड कर देगा. तो क्या लूप बचाया? हाँ या ना? तो दिस पोर्ट वुड बी block port. This port would be. Now there can be more than one designated port on a switch. There can be more than one block port on a switch, but there cannot be more than one root port on a switch. हाँ क्या ना? एक स्विच पर एक से ज्यादा ब्लॉक पोर्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा रूट पोर्ट नहीं हो सकते, और एक VLAN के लिए एक से ज्यादा रूट ब्रिज भी नहीं हो सकता. हाँ क्या ना? क्लियर है ये बात? चलूँ आगे? हाँ. अबे देख एक बात सोच, रूट ब्रिज इज एक्चुअली जनरेटिंग द BPDU. तो जब मैं खुद BPDU जनरेट करूं तो मैं रिसीव क्यों करूं? मेरे को क्या जरूरत है रिसीव करने की? मेरे खुद के BPDU मेरे को वापस मिल रहे हैं. ये क्या बात है यार? अब रिप्लाई का क्या है भाई? कॉन्फ़िगरेशन BPDU तो सेंड ही, जनरेट ही सिर्फ रूट ब्रिज करता है. इन तीनों के तो खुद के कोई कॉन्फ़िगरेशन BPDU है ही नहीं. Only root bridge has the configuration BPDU of its own. Switch number 2, any non-root bridge. भाई अगर ये root bridge है तो बाकी सारे non-root bridge ही है ना. तो non-root bridges do not have any configuration BPDU of their own. बट वो क्या करेंगे, सिर्फ जो दूसरे से जो root bridge से मिली है उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें. समझ में आ रही है? Now एक मिनट रुक जाओ. Now see, first of all, at the starting what is happening कि everyone is announcing themselves as a root bridge or not? Yes sir. But जब switch number 2 को switch number 1 के BPDU मिले तो वो देखेगा कि हाँ भैया उसके BPDU मेरे BPDU से बेहतर है. हाँ या ना? Yes sir. तो वो उसको रूट ब्रिज मान लेगा. Yes sir. जिसके भी रूट ब्रिज इज बेहतर, इज बेटर. If switch B has received the BPDUs of switch A and switch D as well. So friends, according to switch B,
The BPDUs of switch D are, according to switch number 2, the BPDUs of switch number 4 are inferior BPDU. Yes or no? Do we know what is the meaning of superior and inferior? Yes. So switch for switch 2 के I'm speaking like a switch 2. Let's say I'm switch 2. भैया स्विच 4 के बीपीडीयू मेरे लिए इंफीरियर बीपीडीयू है, चल चल कम है तू, है ना, बट वहां से जब उसका है ना स्विच ए के बीपीडीयू आए तो दैट इज अ सुपीरियर बीपीडीयू, मोर सुपीरियर नहीं, दैट इज सुपीरियर, मुझसे भी सुपीरियर है ना, तो आई हैव रिसीव्ड द सुपीरियर बीपीडीयू और नॉट, तो दैट मींस हाँ भैया डैडी तो आपको सॉरी मैंने गलती हो गई, समझे? तो एक बार इन सब के आपस में इलेक्शन होंगे, वंस द रूट ब्रिज इज इलेक्टेड the thing is solved. Yes or no? Yes, sir. अब what is the role of block port? It is blocked port के अंदर क्या होगा कि it is not permanently blocked. पहली बात तो ये याद रखना, it is not permanently blocked but temporarily, only till the time the port against it is what? डीपी अगर सामने वाला सेंड कर रहा है तो ब्लॉक पोर्ट क्या करेगा? ब्लॉक पोर्ट विल कीप ऑन लिसनिंग, सुनता रहेगा, उसको रिसीव करता रहेगा, लेकिन रिसीव करने के बाद ना सुनेगा, ना ध्यान देगा, ना कुछ करेगा। मतलब वही बात है कि पागल बैठा हुआ है, कोई भी आगे कुछ भी बोलते रहो, सही है मैं चुपचाप बैठा हूँ, जैसे ही उसने बोलना छोड़ दे थप्पड़ मारो सड़ गया। ठीक है, तो इसका वो हिसाब किताब है, हैं? हाँ, बसंती नाच, कुत्तों के सामने नाचना बसंती। अच्छा चलो, अब देखो ये समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट परमानेंटली ब्लॉक बट इट इज ब्लॉक टिल द टाइम द पोर्ट अगेंस्ट इट इज एटीपी। अब देखो एक बात बड़ी ध्यान से देखो क्या होता है दोस्त, ये एक नेटवर्क है, अबे ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये स्विच 1 2 3 4 वापस वही वाला नेटवर्क है, ठीक है, ये भी डीपी है, ये भी डीपी है, ये आरपी है, आरपी है, डीपी है, डीपी है, ब्लॉक है, आरपी है ना। तो देखो स्विच नंबर 2 या फिर स्विच नंबर 3, ये स्विच नंबर 2 ही, सॉरी ये 2 था, स्विच नंबर 2 पे लेट सपोज कि ये वाला पोर्ट डाउन हो गया, ठीक है, तो अगर ये वाला पोर्ट डाउन हुआ है तो देयर इज अ चेंज इन टोपोलॉजी और नॉट? सो फ्रेंड्स, इफ देयर इज अ चेंज इन टोपोलॉजी तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूट ब्रिज? यस सर, कैसे? ये वाला लिंक रूट ब्रिज पे कनेक्टेड था कहीं पर, तो इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, है ना, तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, क्लियर और नॉट? ओके, अब पहली बात तो ये, चलो वो पता लग गया इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या होती है। दूसरी बात, अगर ये लिंक डाउन हुआ है तो टोपोलॉजी टीसीएन बीपीडी जनरेट होगा। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि टीसीएन बीपीडीयू इज ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम द रूट पोर्ट, रूट पोर्ट ही इसको जनरेट करेगा, किसी भी नॉन रूट ब्रिज से, किसी भी नॉन रूट ब्रिज से उसको कौन जनरेट करेगा? रूट पोर्ट। तो यहां से जनरेट करके ये इधर भेजेगा, भेजेगा ना। और दूसरी तरफ यहां पर क्या हो रहा है, ये जो स्विच नंबर 4 है, इसको तो रूट पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हो रहे थे ना, अब इसको बीपीडीयू रिसीव होने बंद हो गई, प्रॉब्लम है ना। तो दोस्त अगर इसको बीपीडीयू रिसीव होने बंद हो गए हैं तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इमीडिएटली जाएगा लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट में क्या करेगा, सिर्फ बीपीडीयू उसको लिसन करता रहेगा बट उनको लर्न नहीं करेगा, ठीक है, बस सुनता रहेगा चुपचाप बैठा। फिर होता है लर्निंग स्टेट, जहां पर ये फिर से 15 सेकंड जाएगा, फिर ये जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में। फॉरवर्डिंग मतलब कि अब मैं डाटा पैकेट्स को सेंड भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। और एक बात, जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है ना, डेजिग्नेटेड पोर्ट बीपीडीयू को सेंड करता है ना, लेकिन डाटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है।
और जो रूट पोर्ट है, रूट पोर्ट इज फॉर द रिसेप्शन ऑफ बीपीडीयू, है ना, बट इट कैन रिसीव द डाटा, इट कैन सेंड द डाटा एज वेल, समझे। लेकिन जो ब्लॉक पोर्ट है, इट कैन नॉट रिसीव द बीपीडीयू, राइट, सो इट कैन नॉट इवन डू एनीथिंग विद द डाटा। ये डाटा को भी रिसीव करेगा, लेकिन तुम पागल है, पागल है, बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम कुछ बोल रहे हो, वो आगे उसको जाके नहीं बता रहा, बोले यार, बस इतना जरूर है कि अगर तूने बोलना छोड़ दिया तो उनके थप्पड़ मार दूंगा। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इसको बीपीडीयू मिलने बंद हो गए हैं, है ना। तो सबसे पहले ना लिसनिंग लर्निंग से पहले ये उसमें भी जाता है सबसे पहले कि थोड़ी देर तक उसको होल्ड करता है, ठीक है, देखता है कि मेरे को भी बीपीडीयू मिल जाए, नहीं मिलते फिर चल जैसी जैसी करा। पर ये टाइमर्स के बारे में वी विल रीड टुमारो, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर, ये बीपीडीयू के कंटेंट्स हैं, ये मैंने अभी बताया नहीं है क्योंकि मैं इन बीपीडीयू के कंटेंट्स के बेसिस पे कल आपको ये चीज़ वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, ये चीज़ें अगर हल्की हल्की पढ़ लेना अच्छी बात है। रूट ब्रिज ऑलवेज जनरेट जीरो कॉस्ट बीपीडीयू, भैया रूट ब्रिज से तो रूट ब्रिज पे पहुंचने की कॉस्ट जीरो होगी ना, रूट ब्रिज से रूट ब्रिज पे पहुंचने की कॉस्ट जीरो होगी। और कॉस्ट किस चीज़ की होती है, टू रीच द रूट ब्रिज। पहली दो स्लाइड को ज़्यादा मत देखना, ये देख लेना। तीसरी, ये पोर्ट स्टेट्स, लिसनिंग लर्निंग वगैरह, ये इसके टाइमर्स, इन चीज़ों को देख लेना बेहतर रहेगा, ठीक है। बट ये जो पहली दो हैं, हाँ ये डेफिनेटली मैं कराऊंगा। और साथ में ये वीडियो ज़रूर देखना जिसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं आता होगा तो कल का दिन पूरे का पूरा व्यर्थ हो जाएगा, मान लेना बात को मेरी, हैं। हाँ तो कंफ्यूजन होएगा, तभी तो कह रहा हूँ मैं वीडियो देख ले, वरना मैं पागल वीडियो बना रहा हूँ, बंदे आदमी। चलो बस हो गया।